हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम आईएएस। दिस इज आरुषि हियर एंड आज हम लोग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो हाल ही में न्यूज़ में है। आई नो कुछ दिन के करंट अफेयर्स आपके मिस हो गए थे, सो डू नॉट वरी, यू विल गेट अ समराइज्ड पीडीएफ इन द टेलीग्राम चैनल ऑफ राम आईएएस, राइट। तो जो राम आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन एवरी सिंगल यूट्यूब वीडियो आउट देयर। एंड द रीजन बिहाइंड इट इज कि यू गेट कन्वीनियंट, राइट, आपको कन्वीनियंटली ज्वाइन करने का मौका मिले, ठीक है। इट इज इजी एंड कन्वीनियंट फॉर यू टू ज्वाइन द राम आईएएस चैनल, सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज important. So again, do find the link in our YouTube channel description box below. Moving on, starting off with the important and necessary news articles. And likewise, you will find interesting infographics. The YouTube channel, you have already joined the social media handles of Ram IAS. Other than that, we are also working on developing our blog and publications. Anyway, starting off, जो हमारा पहला important scheme है जो कि है gold monetization scheme. भाई ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के साथ साथ जितनी भी आपकी मोनेटाइजेशन स्कीम थी, फॉर एग्जांपल यू हैव योर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, जो आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो स्कीम है, जो आपका गोल्ड मोनेटाइजेशन का जो स्कीम है, राइट, टेकिंग इनटू अकाउंट कमर्शियल एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी इन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स को टेम्परेरीली डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ओके, सो आरबीआई हैज recently issued a circular to discontinue the gold monetization schemes, right? RBI has issued a circular to discontinue all the gold monetization schemes. So in this regard, it has been launched. Okay, it has been discontinued. In what regard कि कुछ आप पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लो। पहला जो रीजन है, सी, इंडिया इज अ नेट गोल्ड इम्पोर्टर, राइट। गोल्ड होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू, राइट। अगर हम लोग गोल्ड का वैल्यू पहले समझें तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, गोल्ड हैज सिग्निफिकेंट व्हाट ट्रेडिशनल वैल्यू। Gold has a significant traditional value in our households, right? It is seen as an important source of savings. Savings, one thing, traditionally also not just in the recent time, but it is a very traditional practice. During the rainy days जब हम लोगों को savings की ज़्यादा ज़रूरत होती है, we fall back on our gold assets, right? One thing. Second thing, in the context of economy, our foreign currency assets या फिर foreign exchange reserves में, not currency assets, but in the context of a foreign exchange reserve, gold holds a significant value, ठीक है। Next to number one, जो हमारे foreign exchange reserves हैं, they are maintained in foreign currency assets, FCA. Gold reserves, they are basically they are maintained in फॉरेन करेंसी एसेट्स में मेंटेन किया जाता है, गोल्ड रिजर्व्स में मेंटेन किया जाता है। तीसरा इसको मेंटेन किया जाता है किसमें, इट इज बेसिकली आइडियली इट इज मेंटेन्ड इन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। एंड फोर्थ आपका आ जाता है रिजर्व ट्रांसपोजिशन। ओके, तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड रिजर्व ट्रांसपोजिशन इज एसेंशियली मेंटेन्ड विद द IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, तो गोल्ड रिजर्व्स की अगर बात करें तो दे कम एट द सेकंड प्लेस। Second important aspect, RBI maintains a significant amount of gold reserves, not just for the context of foreign exchange reserves, but also the banking and interbanking operations. ठीक है, बैंकिंग और इंटर बैंकिंग ऑपरेशंस को बनाए रखने के लिए आरबीआई गोल्ड रिजर्व्स को मेंटेन करके चलता है। ऑलराइट, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस। नाउ लेट अस understand what was basically the gold monetization scheme all about. One thing. Second thing, why have all the gold monetization schemes been discontinued, right? If I'm going too fast, I'll pace it down a little bit. If you want, then आप XX speed पे चला के भी वीडियो देख सकते हो. If you want a normal classroom experience, and if you think that I am going at a very like super fast speed,
I do not want to do that. All right. So यहाँ पे अगर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की बात करें या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की बात करें, the reason they have been discontinued is financial viability. और यहाँ पे if we say there is this context of what, financial commitment. ठीक है. So when we are talking about financial commitment, when we are talking about what, financial commitment, every institute, every authority has a financial commitment, right? Every institute, every authority has a financial commitment कि मैंने गोल्ड रिजर्व्स इकट्ठा किए हैं, बैंक्स में डिपॉजिट किए हैं, banks are paying me a certain rate of interest on those gold deposits. Yeah, the banks are paying me certain reserves of gold deposits. Okay, तो ये आपका एक फाइनेंशियल कमिटमेंट आ जाता है, सिर्फ बैंक्स के ही ऊपर नहीं, खास तौर पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स दैट आर इम्प्लीमेंटिंग दी स्कीम्स, राइट. Essentially they are sponsored by the government. Essentially they are sponsored by the government only. ठीक, तो आपके जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, दे आर लाइबल टू पे. आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को देख लो तो उसमें एक एन्युटी ऑब्लिगेशन है हर बैंक के ऊपर टू पे अ सर्टेन रेट ऑफ एन्युटी. देयर वाज द प्रोविजन ऑफ प्री मैच्योर विड्रॉवल, राइट. अगर रिडेम्पशन होता है तो रिडेम्पशन इज पॉसिबल. इन केस ऑफ गोल्ड मोनेटाइजेशन में आपका जो रिडेम्पशन है दैट इज बीइंग मेड पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ कैश और इन टर्म्स ऑफ गोल्ड बार्स. Sovereign gold bond में you can redeem your old jewelry or you can redeem it in the form of cash or you can redeem it in the form of gold bars. ठीक है, दोनों ही स्कीम्स को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के कॉन्टेक्स्ट में लॉन्च किया गया. ठीक है, दोनों ही स्कीम्स को शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट में क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है. ठीक है, तो उसमें से अगर हम देखें तो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्ड्स, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म जो आपके डिपॉजिट्स हैं दे हैव बीन डिसकंटिन्यूड. शॉर्ट टर्म मोनेटाइजेशन यानी कि शॉर्ट टर्म गोल्ड डिपॉजिट मोनेटाइजेशन कुछ समय के लिए रिटेन कर ली गई है. ठीक है, और इसको रिटेन भी कौन कर रहा है, द इंडियन बैंक्स आर रिटेनिंग दिस स्कीम ओनली ऑन वन कंडीशन, एज लॉन्ग एज दे रिमेन कमर्शियली viable. As long as they remain commercially viable, then what you will see here is कि आपके जितने भी short term gold deposit schemes है, the basic consumer can also avail them. ठीक है, यहाँ पे अगर sovereign gold bond की बात करें तो इसमें भी you had a minimum deposit tenure of 5 years. अब इसके डिटेल्स समझने का कोई मतलब नहीं है because they have been discontinued with, right? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स की अगर बात करें तो इसमें गोल्ड डिपॉजिट में क्राइटेरिया लगाया था, राइट. 5, 1, 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड. इस कॉन्टेक्स्ट में भी इट इज इंपॉर्टेंट. देन कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, भाई यूपीआई से रिलेटेड काफी सारी न्यूज आ रही है. कुछ समय पहले भी ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आया था दैट यूपीआई वाज discontinued or there was some server error. So first let's understand the entire background before understanding what is the news, before understanding what is the entire case scenario, before understanding what is UPI, what is BHIM, etc, etc. Let us understand this entire context, right? यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, NPCI has developed BHIM, right? What is BHIM? What is the full form of BHIM? भारत इंटरफेस फॉर मनी. देखा कितना लाइक बेसिक यूज होता है, डेली हम लोग यूज करते हैं, बट स्टिल फुल फॉर्म नॉट एवरीवन पेज अटेंशन. यूपीआई इट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत इंटरफेस फॉर मनी, राइट. सो ये जो भीम है, भीम इज एन एप्लीकेशन जो एनेबल करता है ट्रांजैक्शंस फ्रॉम वन मोबाइल फोन टू अनदर मोबाइल फोन इफ इट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, एज सिंपल एज दैट, राइट. एंड ये भीम ऐप वर्क किस पे करता है, ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल यू हैव योर सोशल मीडिया होम पेज, राइट. सोशल मीडिया और नेटवर्किंग इज एन इंटरफेस, एक प्लेटफॉर्म है, राइट. इट इज अ प्लेटफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल देयर आर platforms that host website,
सो फॉर एग्जाम्पल राम IAS का जो भी वेबसाइट है दैट इज होस्टेड बाय अ इंटरफेस और अ वेबसाइट होस्टिंग प्लेटफॉर्म। ठीक इसी तरह आपका UPI भी एक इंटरफेस है जिसके ऊपर भीम ऐप वर्क करता है, एज सिंपल एज दैट। NPCI ने इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। लेट अस हैव अ very quick look at the NPCI. Let us have a very quick note at NPCI. What is it? It is essentially, अगर हम लोग कंपनीज एक्ट के डेफिनेशन के तहत देखें तो NPCI is essentially what? It is a non-profit organization. NPCI happens to be a non-profit organization. ठीक है, ये non-profit organization है जो कि सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। इट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आप सबको पता ही होगा 1956 एक्ट के अंदर वो सेक्शन 25 के अंदर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते थे, अभी सेक्शन 8 के अंडर आ जाते हैं सारे के सारे हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनीज एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पार्ट। ठीक है ना, तो ये आपका एक एस्पेक्ट आ गया व्हाट इज NPCI। ठीक, now talking about NPCI, it is basically why it is a non-profit organization. Number one, हमेशा याद रखना कि ये RBI के अंडर नहीं आता है। Okay, it is not a complete authority or not a autonomous body completely coming under the Reserve Bank of India, बल्कि it is a joint initiative of the Reserve Bank of India plus Indian Bankers Association. ठीक है, it is a joint initiative and it was established under the Payments and Settlements Act of 2007. ठीक है, Payments and Settlements Act of 2007 के अंदर इसको establish किया गया था सन 2008। ठीक, एंड इसके कुछ कुछ स्पॉन्सर बैंक्स भी हैं NPCI के। we'll have a look at it in the next slide. Now let us understand कि भाई ये जो नया फीचर आया है, what is the new feature and why is it important from the exam point of view? So we all know that whenever we want to make a transaction, सबसे पहले we open the UPI app. For example, आप Google पे खोलोगे, आप अपना security pin add करोगे. Whatsoever is your security pin of your phone, you will also use it for your payment applications. Simple, right? And after putting in the transaction details to make the transaction, आपका एक UPI पिन होता है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, आपने ऐप यूज करते वक्त एक चीज को ऑथेंटिकेट किया, ट्रांजैक्शन के वक्त आपने दूसरे पासपोर्ट से उसको ऑथेंटिकेट किया दैट आई एम द पर्सन यूजिंग इट, राइट। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग कहते हैं 2-factor ऑथेंटिकेशन, दैट इज 2-step वेरिफिकेशन प्रोसेस। अब अगर हम लोग बोलें, now if we talk about it, we have a 3-factor authentication process. 3-factor authentication process में जो आपका थर्ड स्टेप आ जाता है, राइट, थर्ड स्टेप में आपका बैंक अकाउंट से भी लिंक हो गया, यानी कि बैंक की तरफ से भी अब आपको OTP आएगा एंड यू हैव टू एंटर द वन टाइम ट्रांजैक्शन, वन टाइम OTP अब आपको एंटर करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो नया फीचर आया है भीम 3 का, दैट इज द 3-factor authentication. Now the context is that whatever we read, whatever we come across on a daily basis, and whenever we want to analyze it from the UPSC exam point of view, तो कई बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखोगे तो UPSC has many times asked questions that are simply based on your presence of mind, one thing. Second thing, based on your day-to-day life. ठीक है, आधार कार्ड एज अ सिटीजन आपसे पूछ लिया कि भाई आप आधार कार्ड पे रजिस्टर कराने जाओगे तो व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया। इफ यू हैड दैट रियल लाइफ एक्सपीरियंस, इफ यू हैव हैड दैट रियल टाइम एक्सपीरियंस, तो फिर आपको वहां से मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम लोग 3-factor ऑथेंटिकेशन की अगर बात करें, talking about the 3-factor authentication, we have what? 3-factor authentication में आपका आ जाता है UPI पिन that you enter at the point of transaction, right? आपका मोबाइल पिन, right?
एंड क्योंकि बैंक अकाउंट से भी लिंक्ड है तो फिर बैंक की तरफ से भी यू विल गेट द वन टाइम ट्रांजैक्शन आईडी. ठीक है. So this is the new feature that has been introduced. Exam point of view say you can add, right, in the context of digital payment infrastructure in India. How far have we come with it? Is it being monitored properly? Checks and balances, regulatory measures genuine hai ya nahi? Because as we all know, not just on a national level, इंटरनेशनल लेवल यानी कि ग्लोबल लेवल पे भी आरबीआई इज टाइंग अप विद द बैंक्स ऑफ अदर कंट्रीज, आरबीआई इज टाइंग अप विद द बैंक्स ऑफ अदर इकोनॉमीज फॉर यूपीआई लिंकेज, फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन, राइट. सो दैट इज वन एस्पेक्ट. तो ये आपका 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ जाता है. कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है भीम एप्लीकेशन के, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था और जब से लॉन्च हुआ है ये 2016 में 170 मेंबर बैंक्स ऑलरेडी इससे जुड़ चुके हैं. नॉट रेलेवेंट फॉर यूपीएससी बट स्टिल जस्ट फॉर जनरल नॉलेज. ठीक है. इट एनेबल्स द डायरेक्ट मनी ट्रांसफर. 20 इंडियन लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है. अगेन अ फैक्चुअल नॉलेज, भीम ऐप इज अवेलेबल इन 20 इंडियन लैंग्वेजेस, राइट. अब यहाँ पे यूपीआई से रिलेटेड कुछ नए इनिशिएटिव्स हम लोगों को याद होने चाहिए. यूपीआई 123, राइट. यूपीआई लाइट इनिशिएटिव हम लोगों ने लॉन्च किया है. अब 123 क्या है? 123 एक ऐसा पेमेंट इनिशिएटिव है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है. नाउ दे शुड ऑल्सो बी एबल टू एंटर इनटू द यूपीआई ट्रांजैक्शन, राइट. तो यहाँ पे यूपीआई 123 क्या कर रहा है? डायरेक्ट बैंक से वेरीफाई करवा के यूपीआई ट्रांजैक्शन बैंक्स के थ्रू ट्रांसफर करके एनेबल कर रहा है, राइट. सो दैट इज व्हाट internet free UPI transaction. What is the success rate of it? We still need to analyze it. UPI Lite क्या है? UPI Lite is basically a cap. जितने भी आपके डेली ट्रांजैक्शंस हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शंस है, 10 रुपए देना है, 20 रुपए देना है, 50 रुपए, अप टू ₹2000, राइट. इस पे कैप है. UPI Lite एक वॉलेट है, राइट. नाउ UPI Lite के एडवांटेजेस ये हैं, इट इज बेसिकली बेनिफिशियल फॉर व्हाट, फॉर बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट. इसमें आपके जो MDR चार्जेस हैं उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा. अगर आप रेगुलर यूपीआई ट्रांजैक्शन सपोज कर रहे हो, यू विल हैव टू पे द मर्चेंट डिस्काउंट रेट, राइट. यूपीआई लाइट पे ये अभी पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं है. नाउ आई एम सेइंग दिस विद द अजम्पशन कि आप लोगों को पता है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, राइट. आरबीआई in the initial years of launching the UPI gave complete benefit over the merchant discount rate. Now it has been withdrawn, यानी कि अब हमको merchant discount rate नहीं मिलता है, अब हमको MTR के चार्जेस पे करने पड़ते हैं. 1 से 1 लाख के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उस पर कोई भी फीस इम्पोज नहीं है, राइट. All the transactions between 1 to 1 lakh, there is absolutely no fee that has been imposed. ठीक है. कुछ important features हैं, that is family mode, भीम वेगा and spends analytics. अगर हम लोग family mode की बात करें, talking about the family mode क्या है? For example, you must have gone out with your friends, expenses हुए होंगे, and then you must have split that expenditure, right? You must have split that expenditure. So that is what? That is your family mode. So that is also now enabled in your UPI. ठीक है. भीम वेगा क्या है? Merchants can accept in-app payments. Merchants can now accept what? In-app payments. मर्चेंट्स कैन एक्सेप्ट इन ऐप पेमेंट्स का मतलब ये है कि विद इन द भीम ऐप जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको अब स्ट्रीमलाइन करना काफी इजी हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट टॉकिंग अबाउट NPCI. इट्स सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. कुछ अगर स्पॉन्सर बैंक या प्रमोटर बैंक की 10 कोर प्रमोटर बैंक्स दैट इंक्लूड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB कैनेडा. You can find the details on the NPCI website. Moving on, Southern Indian states की यहाँ पे हम लोग बात करें. See, whenever we think in the context of Southern Indian states, what comes to our mind?
Whenever we think in the context of southern Indian state, what is it that comes to our mind? Southern Indian states may, first of all, literacy rate is high, right? They are more developed, population is less, infrastructure, the internet connectivity, everything is perfect. यही आता है हमारे नॉर्थ इंडियन माइंड्स के assumption में. And कुछ हद तक, yes, it is absolutely true, right? Why is it that cities like Bangalore, why is it that cities like Chennai, they are the hubs for startups? Right, Bangalore में unicorn startup, one of the largest, not in the country, not in Asia, but in the world. Right. बेंगलुरु में यूनिकॉर्न का बूम हुआ, फिर उसके बाद आपके डेकाकॉन्स आ गए. राइट, सो दैट इज द सिनेरियो, दैट इज द एंटायर थिंग दैट इज देयर, है ना. तो ये आपका सदर्न इंडियन रीजन की अगर बात करें तो, टॉकिंग अबाउट द सदर्न इंडियन रीजन, इट इज, what do we say, economically well developed, economically better off, has a better access to other countries. Okay, बट अभी ये दोबारा से न्यूज में आया है बिकॉज रिसेंटली चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है हमारे वी अनंत नागेश्वरम, ही हैज एम्फसाइज्ड कि जितने भी सदर्न इंडियन स्टेट्स हैं उनको अपनी जो बेंचमार्क इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, अब अगर हम लोग बात करें तो इसमें काउंट हो जाते हैं आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, राइट. टू सम एक्सटेंट वी कैन ऑल्सो काउंट सदर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, राइट. यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, दिस इज बेसिकली मोर इन अलाइनमेंट विद ईस्टर्न बेल्ट स्टेट्स. यहाँ पे वही आपकी जो कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स आ जाती है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड, districts like Gadchiroli. So let's not go there, let's stick to these 5 southern Indian states. अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? Everything looks hunky dory, right? The problem here is that Telangana, for example, is a state जिसका जो per capita income है, we also saw the Telangana budget that day earlier, right? So Telangana is a state जिसका per capita income is 2 times higher than the national average. ठीक है, 3.64 lakh somewhere around is the per capita income in the state of Telangana. But the problem is that जो high per capita income है, that is restricted to a few districts only. ठीक है, कुछ ही districts तक वो restricted है, ज़्यादा districts तक restricted नहीं है. तो यहाँ पे अगर हम लोग तेलंगाना की बात करें as a southern Indian state, तो it is performing well in terms of GSDP. It is performing well in terms of the literacy rate. It is performing well in terms of per capita income, right? Even in the context of when we are talking about the state capital, when we are talking about infrastructure, ठीक है, the state is progressing slowly but steadily, right? एक और जो खास बात आ जाती है वो आ जाता है आपका IT hub, right? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है दैट मोस्ट ऑफ द ग्रोथ इन द सदर्न इंडियन स्टेट्स इज स्टिल डोमिनेटेड बाय द सर्विस सेक्टर. 50% तक जो इकोनॉमिक आउटपुट है यहाँ पे, व्हाट इज 50% ऑफ व्हाट? 50% ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट. So talking about the economic output, what do we have? Talking about the economic output, we are not talking about GSDP, we are talking about the NNP at FC. ठीक है, still dominated by and large by the service sector. And इसके contrast में, if we look at the share of manufacturing sector, that is still at 20%. In contrast to this, the share of the manufacturing sector still remains to be at what? At 20%. Okay, so that is one flaw. इस flaw के कारण पता है हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अगर employment generate हो भी रहा है in southern Indian states में, if they are able to generate jobs, if they are able to generate employment, what is ultimately happening here is that only gold collar professions, gold collar प्रोफेशंस एज एन वो प्रोफेशंस जो हाईली स्किल्ड है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ईसोटेरिक स्किल्स. ईसोटेरिक मतलब कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही वो नॉलेज है,
ठीक है, दैट नॉलेज इज कन्फाइंड टू अ सेलेक्ट फ्यू पीपल, हाईली esoteric, हाईली प्रोफेशनल, हाईली कॉम्प्लिकेटेड टू नो, तो esoteric नॉलेज है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड टू गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दी गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स की, तो दे आर बीइंग एबल टू रीप द बेनिफिट ऑफ सर्विस सेक्टर बूम, बट व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट अबाउट द सेमी स्किल्ड, अंडर स्किल्ड, लो स्किल्ड और कंप्लीटली अनस्किल्ड वर्कर्स, वो कहाँ जाएंगे, कौन उनको एम्प्लॉयमेंट देगा, दैट इज दी क्वेश्चन। सो यहाँ पे इफ वी सी वी हैव द गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स इन द सदर्न इंडियन स्टेट्स, ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जो सिनेरियो है दैट इज हाईली कंस्ट्रूड, ओके, द एंटायर एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो रिमेन्स टू बी हाईली कंस्ट्रूड, reaping only to the serving only to the select few, leaving out the masses। अब ये मेजर इकोनॉमिक कंसर्न सिर्फ सदर्न इंडियन रीजन के लिए नहीं है, इट इज फॉर द एंटायर कंट्री। रीजन बीइंग, एक हम लोग इकोनॉमिक्स में थ्योरी पढ़ते हैं दैट इज नोन एज पुश पुल फैक्टर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पुश एंड पुल फैक्टर, कि एक तरफ आ जाता है हमारा नॉर्दर्न इंडिया, राइट, एक तरफ आ जाता है हमारा सदर्न इंडिया। अब नॉर्दर्न इंडिया का कॉन्टेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नॉर्दर्न इंडियन में डेमोग्राफिक डिविडेंड इज वेरी हाई, बिकॉज नेचुरल एडवांटेज है हमारे पास, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ऑफ अ हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अगर आप बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट देख लो, इट कम्स आउट टू बी 2.41, बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है आपका, 2.41 है, राइट। आप सदर्न इंडियन स्टेट्स का टोटल फर्टिलिटी रेट देख लो तो कुछ कुछ सदर्न इंडियन स्टेट्स का एंड इवन कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, फॉर एग्जांपल सिक्किम हो गया, उसका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो नेशनल एवरेज से भी कम है, राइट। नेशनल एवरेज अभी कितना चल रहा है TFR, दैट इज 1.8। तो देर आर सर्टन स्टेट्स इन द साउथ सदर्न इंडियन रीजन, देर आर सर्टन स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन जिनका जो TFR जो है दैट इज स्टिल लोअर देन द नेशनल एवरेज, विच मीन्स जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होना चाहिए आइडियल टू contribute to the demographic dividend in the middle term or even in the long term future, that population growth rate is still not high। वो population growth rate अभी भी उस लेवल का नहीं है, one thing। सेकेंड थिंग, जो एवरेज एज है सदर्न इंडियन स्टेट्स की कंबाइंड हैपेंस टू बी हायर देन द एवरेज एज ऑफ नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स, यानी कि लार्जर शेयर ऑफ ओल्डर पीपल, लार्जर शेयर ऑफ ओल्डर पीपल। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये प्रॉब्लम तब भी आई थी जब फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम आया था। There was a debate over the grants and aids being offered to southern Indian states that was less in the context of or on the basis of कि भाई वहाँ की population कम है, right, वहाँ के लोग ज़्यादा aged है, so it does not need as much and ज़्यादा developed है, literacy rate भी high है, infrastructure भी well and good, so northern Indian states को या कुछ select few states को ज़्यादा grants की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, it is not a very minor issue। even a few days ago we discussed in our current affairs class only कि तमिलनाडु ने, what did तमिलनाडु do, भाई तमिलनाडु ने क्या किया है, आपके 30 सालों तक रेकमेंड किया है सेंटर को, 30 सालों तक हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं या फिर हमारा जो शेयर है इन द लोकसभा इन टर्म्स ऑफ सीट्स फ्रीज कर दिया जाए, और यानी कि डीलिमिटेशन कमीशन जब भी आएगी अगले सेंसस के बाद TN के साथ कोई छेड़खानी ना करे, 30 साल तक और फ्रीज कर दे। सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड ओवर हियर, अंडरस्टैंड, ऑलराइट। तो अगेन दैट इज वन इशू। अब यहाँ पे पुश पुल फैक्टर क्या आ जाता है, पुश पुल फैक्टर आपका ये आ जाता है कि नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स में बिकॉज वी हैव अ यंगर पॉपुलेशन, नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स हैज अ हायर डेमोग्राफिक डिविडेंड, right, northern Indian states has more number of students जो इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस से निकल रहा है, they are getting drawn to southern Indian states, right। आज के टाइम पे अगर आप MBA भी कंप्लीट करते हो
तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिल्ली गुड़गांव से ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको किसी भी सदर्न इंडियन स्टेट में मिल जाएगी, राइट दिल्ली गुड़गांव से भी कई ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी, सो यू विल माइग्रेट, यू विल माइग्रेट। सो दिस इज व्हाट पुश पुल फैक्टर क्या हो जाता है, पुश फैक्टर lack of economic opportunities getting pulled by abundant and better economic opportunities, right? So already क्या हो रहा है, already migration हो रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, already we are migrating from north to south and that migration is highly dominated by the service sector growth. That migration is highly dominated by the service sector growth, understand? ये एक फैक्टर हो गया है ना, ये आपका एक फैक्टर हो गया। फिर आप यहाँ पे बात कर लो किसकी, नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स। यहाँ पे अगर आप लोग नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स की बात करिएगा, अगर economically we are also not being able to contribute as much to the service sector. Service sector growth यहाँ पे है but not as much high as compared to the southern Indian states. This is one backlog. ठीक है, ये एक अब अगर हम देखें तो ये एक ड्रॉबैक हो जाता है। ओके, दूसरा जो केस सिनेरियो है, अदर देन द लैक ऑफ रीजनल बैलेंस, राइट, इनकम डिस्पैरिटी, सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ, जो आपका दूसरा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि एक कॉन्ट्रास्ट है, राइट, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कंट्रास्ट्स, राइट, एंड मेजर इकोनॉमिस्ट थिंकर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल आपके सोलो, द पर्सन द इकोनॉमिस्ट हु गेव द सोलोस ग्रोथ मॉडल, राइट, और you have Samuel Johnson who gave another growth model. ठीक है, they keep giving course, even J.M. Keynes, right? For example, J.M. Keynes ने एक phrase दिया है animal spirit का। Animal spirit क्या होता है, individual का profit seeking spirit, entrepreneurship का spirit, कि मुझे ज़्यादा profit मिलेगा if I invest, that is what investor sentiment. Animal spirit is code word for investor sentiment. Solow ने क्या दिया आपका, knife's edge. When does an economy walks on a knife's edge? एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, you have to walk on the knife and bleed. तीसरा आपका क्या हो गया, तीसरा आपका हो गया set the ball rolling. Set the ball rolling आपका हो गया Harrod-Domar growth model. We saw this phrase that we set the ball rolling for a new era of economic growth, the concept of economic growth. ठीक इसी तरह यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रास्ट है इंडियन इकोनॉमी के साथ, हम लोगों को क्या फ्रेज देखने को मिला, दैट वाज द फ्रेज ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ क्या हो गई, सर्विस सेक्टर ग्रोथ लीड कर रहा है, जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं जिनको अंग्रेजी बोलनी आती है, सॉफ्टवेयर चलाना आता है, टेक्निकली साउंड हैं, राइट, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, दे आर एम्प्लॉयड एंड वेल सेटल्ड एंड स्टेबल इन देयर लाइफ, राइट, they're employed, well settled and stable in their life. Okay, अब ये आपकी हो गई जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ क्या हो गया कि इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ रहा है बट एम्प्लॉयमेंट उस एस्पेक्ट से नहीं बढ़ा। जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो जनरेट होनी चाहिए वो नहीं हो रही, यानी कि प्राइस लेवल बढ़ता चला जा रहा है, इन्फ्लेटेड जीडीपी हो रहा है। नॉमिनल जीडीपी मतलब इन्फ्लेशन लेड ग्रोथ है खाली, सब्सटैंशियल ग्रोथ, रियल ग्रोथ नहीं है, सिंपल सा मतलब यही है। अब सदर्न इंडियन स्टेट्स का आज का सिनेरियो ये है कि रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई, rate of employment is very high, but at the same time rate of अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो ज़्यादा है ही है, जो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का रेट है, जो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है दैट इज वेरी लेस, एक्चुअली नॉट हाई बट दैट इज वेरी लेस। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या हो गया आपका,
casual labor, usual status, casual status of the rate of employment and unemployment in the southern and in the urban and the rural region among men and women, between men and women. ठीक है, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है बट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है. Isn't that contradicting? Isn't that odd? But that is actually true. ठीक है, तो इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई पुश पुल फैक्टर है. ठीक है, नॉर्दर्न इंडियन स्टेट से जनता माइग्रेट करके साउथ इंडिया आई, काम कर रही है, तो उनका तो एम्प्लॉयमेंट है. बट जो नेटिव्स हैं, आप कर्नाटका देख लो, अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज अ कंट्रोवर्सी दैट कर्नाटका वांटेड टू इम्पोज अ पॉलिसी. कर्नाटका वांटेड टू इम्पोज अ पॉलिसी कि जितने भी वहां पे रेसिडेंट्स हैं जिनको कन्नड़ा बोलना आता है, प्राइवेट कंपनीज उन्हीं को प्रेफरेंस दे. यानी कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला जो डोमिसाइल स्टेटस वाला क्राइटेरिया था वो प्राइवेट फर्म्स में भी जा रहा है. दैट वाज अ जेन्युइन इशू यार. क्यों ऐसा किया? लोकल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिलने में प्रॉब्लम है, राइट? That is still a problem that prevails in southern Indian states. That is still a problem that prevails in the southern Indian states, right? तो ये जो एस्पेक्ट हो गया कि आपका एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है, दिस इज अ रियलिटी. अब ये भी इसलिए वजह से भी क्योंकि भाई माइग्रेट होके लोग वहां पे जाके बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज रीव कर पा रहे हैं, बट जिनके पास स्किल्स नहीं है, जो अंडर स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, कंप्लीटली उनको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रहा है. सो दैट इज अनदर इशू दैट इज ग्रिपिंग द सदर्न इंडियन इकोनॉमी. सो these are the basic challenges. अब इसके solutions आप सबको पता है क्या है. You all are very well aware about the problems and we all are very well aware about the initiatives and solutions. उसमें आपका क्या आ जाएगा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसमें आ जाएगा आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसमें आ जाएगा आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन योजना, राइट? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, even मनरेगा, despite the corruption, despite the shady areas associated with the scheme, ठीक है वो. ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं CDSO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भाई आ जाता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर. क्यों है ये न्यूज में? एंड बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो वैक्सीन के लिए, इंजेक्शन के लिए मना कर रहा है. सो दैट इज व्हाट बेसिकली अ वैक्सीन. ठीक है, तो एंटी वैक्सीन जो मूवमेंट है, जो एंटी वैक्सीन वाला जो साइकोलॉजिकल फियर है, या फिर अगर उसको देखें तो साइकोलॉजिकली इंड्यूस्ड फियर है, सबसे ज्यादा देखने को कब आया था? ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ड्यूरिंग द कोविड-19 वैक्सीन. अभी ये इशू फिर से आया एंड देर आर सर्टन सोशल बायसेस ऑल्सो. ठीक है, I will try my best to be neutral, politically as much neutral and unoffensive as I can be, but it is a reality that we have to accept. ठीक है, एज अ पॉलिसी मेकर आप जब भी देश का उद्धार करने निकलते हो, तो एज अ पॉलिसी मेकर आप ग्राउंड रियलिटी की तरफ न्यूट्रलिटी मेंटेन करके नहीं चल सकते. ग्राउंड रियलिटी आपको एज इट इज एक्सेप्ट करनी ही करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू मेक अ रिफॉर्म, इफ यू वांट टू मेक अ चेंज एंड गो अहेड. Right? If you want to make a reform, if you want to make a change and go ahead, you will have to accept the policies as it is. Okay? So, the scenario as it is. So, we all know that there is fear among the uneducated, among the unaware, among a certain group of people, certain community, there is fear against the after effects of vaccine. अब ये इशू पहले कोविड के टाइम पे आया था, अभी फिर से रोटा वायरस या एंटी रेबीज वैक्सीन के अगेंस्ट अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन चल रहा है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला अगेंस्ट द एंटी रेबीज वैक्सीन इशू. राइट, अगेंस्ट द एंटी रेबीज वैक्सीन इशू अभी भी क्या मुद्दा चल रहा है. राइट. तो अभी यहाँ पे क्या है, what are the context, what are the dimensions that we have to take into account from the point of view of mains is that
कि आपके एंटी वैक्सीन से रिलेटेड यू हैव अ सोशल स्टिग्मा, you have a psychological fear, right? Other than that, putting a pin on that, उसके अलावा अगर कोई इशू आ सकता है, that is issues related to transparency, right? ट्रांसपेरेंसी वाला इशू भी रिजॉल्व करने के लिए we already have the कोविन ऐप. कोविन ऐप के अंदर एज अ यूजर इफ यू आर गेटिंग योरसेल्फ एडमिनिस्टर्ड अ वैक्सीन, अभी उसमें इंद्रधनुष ऐड हो गया है, यानी कि इंद्रधनुष के अंदर जितनी भी वैक्सीन्स हैं, जितनी भी 8 वैक्सीन्स हैं अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस, वो सारी की सारी अब कोविन ऐप के थ्रू यूजर भी मॉनिटर कर सकता है. जिस अथॉरिटी ने वैक्सीन एडमिनिस्टर करी है वो भी मॉनिटर कर सकता है. सो इट इज प्रिटी मच अकिन टू व्हाट वी हैव द कॉन्सेप्ट, व्हाट वी हैव इन द कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट, द नेशनल हेल्थ स्टैक. ठीक है, एक मिनी वैक्सीन्स का नेशनल हेल्थ स्टैक की तरह ये काम कर रहे हैं, राइट? सो यस, बाय एंड लार्ज वी आर रिजॉल्विंग द ट्रांसपेरेंसी इशू. दूसरा जो इशू आ जाता है, आफ्टर इफेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए आप क्या कर रहे हो. भाई वैक्सीन के थ्रू अगर स्टिग्मा है तो वो क्यों है? लैक ऑफ अवेयरनेस कैन बी अ पॉसिबल रीजन, लैक ऑफ इंटरेक्शन विद द पब्लिक, राइट? डॉक्टर्स हैं, जितने भी आपके मेडिकल सर्वेंट्स हैं, मेडिकल अथॉरिटीज हैं, वो पब्लिक से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं. दे आर नॉट केयरिंग टू एजुकेट द पीपल दैट ओके ये वैक्सीन आपको लगाई, इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, राइट? सो व्हाट डू वी नीड? वी नीड अ मास कैंपेन टू डू अवे विद द प्रिवेलिंग फियर्स. वन थिंग. दूसरा अगर हम लोग एस्पेक्ट देखें भाई, if we look at another aspect, that is आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग. ठीक है, अगर मॉनिटरिंग के बाद कुछ लोग मर जाते हैं वैक्सीन्स लेने के बाद, इफ सम पीपल डाई, व्हाई डिड दैट हैपन? वाज इट बिकॉज ऑफ द वैक्सीन? वन थिंग. वाज इट बिकॉज ऑफ एन अंडरलाइंग कंडीशन जो वैक्सीन की वजह से एक्टिवेट हो गई? क्या पहले से ही कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज या कोई लाइफस्टाइल डिजीज था उस पेशेंट को, जिसकी वजह से वो वैक्सीन उसको सूट नहीं कर पाई? फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज है, या कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, या कोई दूसरा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, या फिर लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है. ओके, तो इफ दैट इज हैपनिंग, तो लाइव मॉनिटरिंग हम लोग करें. आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द वैक्सीन वी आर मॉनिटरिंग इट ऑन अ लाइव बेसिस. ठीक, दैट इज हैपनिंग, वी शुड बी एबल टू मॉनिटर इट ऑन अ लाइव बेसिस. तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन. ये आपका सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्डर आ जाता है. सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्डर, यहाँ पे इसका क्या रोल आ जाता है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्डर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है हमारी कंट्री में. दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग एंड ग्रांटिंग लाइसेंसेस टू द ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर्स. जितनी भी नई ड्रग्स लॉन्च होती हैं कंट्री में, जितनी भी नई ड्रग्स लॉन्च होती हैं कंट्री में, राइट, हम क्या कर रहे हैं? हम उनको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, हम उनको लाइसेंस दे रहे हैं. क्लिनिकल ट्रायल्स को पूरा असेसमेंट लेके हम उनको लाइसेंसेस अवार्ड कर रहे हैं, हो कि ना? ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी हमारी मेडिकल डिवाइसेस हैं, जितनी भी हमारी मेडिकल डिवाइसेस हैं, राइट, और जितना भी हमारा मेडटेक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको फंड और फाइनेंस करने के लिए भी CDSCO इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल अथॉरिटी, राइट. तो ये आपका आ जाता है क्या? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन से रिलेटेड इशू. ठीक, तो यहाँ पे CDSO इज वन ऑफ द की अथॉरिटी जो पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस जैसा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी निभाता है. ठीक है, पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस क्या हो गया आपका? कि ड्रग को लॉन्च करने के बाद, ड्रग को इकोनॉमी में लॉन्च करने के बाद जो सर्वेलेंस है, जो सर्वे कर रहे हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट है, लोगों तक क्या इम्पैक्ट पहुंचा है, ठीक है, कितनी डेथ्स हुई है, क्या आफ्टर इम्पैक्ट रहा है, क्या कॉमन सिम्टम रहा है.
अब ऐसा तो नहीं है दैट इंडिया होमोजेनस कम्युनिटी है, राइट, वी आर अ डाइवर्स कम्युनिटी, हर तरीके के लोग हैं, कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप इज ओ नेगेटिव, कुछ RH कैटेगरी वाले ब्लड ग्रुप आ जाते हैं, राइट, कुछ का जेनेटिक म्यूटेशन, कुछ का जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके का होता है कि कुछ चीज़ें सूट करती हैं नहीं करती, राइट, इट इज़ अ रियलिटी दैट वी मस्ट एक्सेप्ट, ठीक है। कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ में आप देखोगे तो सिकल सेल अनीमिया का रेट ज़्यादा है बिकॉज दे आर ट्राइबल कम्युनिटीज। हाँ, तो ये आपका एक एस्पेक्ट हो गया यहाँ, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर इशू, राइट, एंड दिस एंटायर इशू कैन बी समड अप एज पब्लिक ट्रस्ट इन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन में जो पब्लिक ट्रस्ट है उसका क्या रोल। अब ये जो आप फोटो देख रहे हो, दिस इज बेसिकली अ वेरी ब्यूटीफुल बट एन इन्वेसिव स्पीशी, जिसको कि हम लोग वाटर ह्यासिंथ के नाम से जानते हैं। We know this by the name of what? We know this by the name of water hyacinth or water lilies. They look very beautiful, but they are invasive. ठीक है, और it is not like, see, हर invasive species harmful हो, it is harmful, right? It is harmful in the sense कि इसकी जो लीफ होती है that is very sticky, right? That has a waxy coating. The leaf of water hyacinth has a sticky waxy coating. ठीक है, वैक्सी कोटिंग होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि जो अंडर वाटर का जो एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो ओवरऑल हेल्थ है दैट इज डिटीरियोरेटेड। द एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है दैट इज व्हाट, डिटीरियोरेटेड, वन थिंग। बट ऑन द फ्लिप साइड वाटर ह्यासिंथ का जो बेनिफिट है दैट इज इट इज एबल टू एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स, इट इज एबल टू एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स, राइट, टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब करता है, हैवी मेटल एब्जॉर्ब करता है, सो दैट इज वन एस्पेक्ट। यहाँ पे आपका ये एक एस्पेक्ट हो गया, ठीक। तो ये जो वाटर ह्यासिंथ है, सबसे पहले इसका अगर इन्वेसिव स्पीशी का इशू आया था दैट वाज इयर्स अगो इन द हुसैन सागर लेक इन हैदराबाद, ठीक है। हुसैन सागर लेक के बाद सम लेक्स इन असम, राइट, एंड देन वी हैव दिस लेक मूला रिवर, राइट। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसका इश्यू आया है। ये इन्वेसिव स्पीशी बेसिकली सोर्स्ड फ्रॉम साउथ अमेरिकन रीजन, ठीक है, साउथ अमेरिकन रीजन से आया। इट इज नॉट ऑल दैट हार्मफुल, इट इज हार्मफुल, यस। देखो, अगर कहीं पे टॉक्सिसिटी ज्यादा है, अगर कहीं पे हैवी मेटल्स एंड टॉक्सिक मेटल्स का जो लोड है वो ज्यादा हो गया है किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो वहां पे अगर कुछ समय के लिए वाटर ह्यासिंथ को प्लांट कर दिया जाए, राइट, उनको ग्रो किया जाए, तो वहां पे वो फाइटो रेमेडिएशन का फंक्शन निभाते हैं। वहां पे वो फाइटो रेमेडिएशन का फंक्शन, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, राइट, तो बायो रेमेडिएशन वी ऑल ऑलरेडी नो अबाउट, सो हियर दे आर कंडक्टिंग द प्रोसेस ऑफ फाइटो रेमेडिएशन, बट आफ्टर सम टाइम दे विल हैव टू बी रिमूव्ड। अगर उनको समय चलते नहीं रिमूव किया गया तो व्हाट विल हैपन, लीच आउट होने लगता है, वही मेटल्स जो एब्जॉर्ब करे थे दे विल स्टार्ट लीचिंग आउट अगेन एंड अगेन, ऑलराइट। सो दैट इज वन थिंग, ठीक। तो दैट इज द इशू ऑल अबाउट। न्यूज में आ रहा है, काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है, सो लेट अस हैव अ ब्रीफ। अनदर सॉफ्ट लॉन्च हो रहा है। सॉफ्ट लॉन्च किसका हो रहा है, एलिफेंट्स का हो रहा है, ठीक है। एलिफेंट्स जो है भद्रा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में एलिफेंट्स का सॉफ्ट लॉन्चिंग हो रहा है। एलिफेंट्स का सॉफ्ट लॉन्चिंग हो रहा है, द रीजन सॉफ्ट लॉन्च मतलब आपने एक छोटी कम्युनिटी को रिलीज किया। अब एलिफेंट इज नॉट एन आइसोलेटेड स्पीशी, स्पेशली एक मेट्रियार्कल डोमिनेटेड कम्युनिटी होती है, राइट, दे लिव in groups, they survive in herds. We have the matriarch who guides the entire herd. Males also, they do not live in isolation. Males are also found in the groups of 2 and 3, ठीक। तो यहाँ पे सॉफ्ट लॉन्च एक कम्युनिटी को या थोड़ी सी पॉपुलेशन को लॉन्च किया है या इंट्रोड्यूस किया है इन दिस पर्टिकुलर हैबिटेट बिकॉज ऑफ इट्स वाटर अवेलेबिलिटी, प्लस पानी ज्यादा है, पहली बात। दूसरा,
corridors. Human population is less, significantly controlled. अब वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एक ऐसा एरिया होता है जो कि स्टेट के नहीं जबकि प्राइवेट कंट्रोल में होता है. वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज कंप्लीटली कैन बी नेसेसरीली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है नेशनल पार्क का भी हिस्सा हो सकता है. वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आपका बायोडाइवर्सिटी पार्क का भी हिस्सा हो सकता है. अब वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कंप्लीटली प्राइवेट अथॉरिटीज भी ओन एंड ऑपरेट कर सकती हैं, राइट. तो यहाँ पे बेसिक जो इशू आया है कि जो एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स का सॉफ्ट लॉन्चिंग हो रहा है अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन, राइट, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द भद्रा. अब भद्रा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है कर्नाटक के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के आसपास इर्द गिर्द में लोकेटेड है, राइट, एंड इट इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड. अगर हम लोग यहाँ की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इसको बहुत पुरानी है ये, 1951 में इसको वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी डिक्लेयर कर दिया गया था. 1998 में इट बिकेम अ टाइगर रिजर्व, राइट. सो दीज आर ऑल फैक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इट. ठीक है, तो सदर्न मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट्स. सो भद्रा टाइगर रिजर्व इज बेसिकली अ मिक्स ऑफ सदर्न मॉइस्ट मिक्स ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट. ठीक है, यहाँ पे आपको 16 फॉरेस्ट रिजर्व्स भी मिल जाएंगे. यहाँ पे आप लोगों को 16 फॉरेस्ट रिजर्व्स भी मिल जाएंगे जो कि रिच बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं. आपका सदर्न मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट. यहाँ पे मैमल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इट हैज टाइगर्स, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स एंड रिच बर्ड स्पीशी. ठीक, so that is what Shola, I hope you all know कि Shola is a mix of deciduous plus evergreen forest के बीच में जो आ जाता है, राइट, जो आपके माउंटेन इकोसिस्टम है, माउंटेन रीजन है इन द सदर्न इंडियन स्टेट्स लाइक कर्नाटक, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु. when we are basically transitioning from mountain to deciduous, सो बीच में जो आपका एक छोटा सा माउंटेन ग्रासलैंड इकोसिस्टम आता है, दैट इज शोला फॉरेस्ट ऑफ द रीजन, राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट एशियन एलिफेंट्स, राइट. एशियन एलिफेंट्स वी ऑल नो देयर आर 2 स्पीशीज, एक अफ्रीकन एलिफेंट स्पीशी हो गया, एक एशियन एलिफेंट स्पीशी हो गया. ठीक है, अगर इसके थ्रेट्स के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोक्यूशन, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट चेंज. ओके, जो हमारा ग्रेट मैमथ स्पीशी था वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सटिंक्ट हुआ, उसी के कारण एक्सटिंक्ट हुआ. जो हमारा एलिफेंट स्पीशी है वो भी आपका इलेक्ट्रोक्यूशन इज वन थ्रेट. इलेक्ट्रोक्यूशन इसलिए भी थ्रेट है बिकॉज जो एलिफेंट होता है, जो मेट्रियार्क होते हैं, दे रिमेंबर द रूट. ओके, दे हैव अ वेरी हाई इमोशनल कोशेंट, वन थिंग. सेकेंड थिंग, उनको सारे रास्ते याद होते हैं. दैट इज नॉट जस्ट इन देयर दिस लाइफ टाइम बट दैट इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ठीक है, जो उनके मेट्रियार्कल लीनियज में जो एलिफेंट कॉरिडोर्स, जो आपके ट्रेडिशनल रूट्स हैं, उन्हीं को वो ज्यादातर फॉलो करना प्रेफर करते हैं. नाउ दे आर नॉट चेंजिंग द रूट, दे आर नॉट चेंजिंग द कॉरिडोर. वहां पे प्रॉब्लम क्या हो गया, हम लोगों ने रेलवे लाइन डाल दिया. जो आपका नगर होल बांदीपुर इको रीजन है, अब नगर होल बांदीपुर इको रीजन एक ऐसी साइट है जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज ट्रैवर्स होकर जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे लाइंस गुजर के जाती हैं. अब वहाँ पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज अ बिग इशू. वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज अ बिग इशू, राइट. सो दैट इज वन थिंग दैट इज वेरी प्रोमिनेंट इन सदर, जो आपका पलक्कड़ गैप है, राइट. ऐसा नहीं कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है. Okay, so this is one prominent, one serious concern, one life concern. Even in West Bengal, human-animal conflict, right? In northeastern region में भी elephants and rhinoceros की जो population density है, यानी कि per square kilometer जो population में आप increase देख रहे हो, that is leading to human-animal conflict. That is leading to human-animal conflict, right? Now ऐसा अगर हो रहा है उसकी वजह से
उसके पीछे का कारण क्या है यार, कि इलेक्ट्रोक्यूशन, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, और तीसरा आपका हो गया क्लाइमेट चेंज, जिनकी पॉपुलेशन को थ्रेट हो जाता है। क्लाइमेट चेंज, रीजन बीइंग एलिफेंट्स आर एसेंशियली व्हाट, पैकीडर्म। ठीक है, एलिफेंट्स क्या हो गए, पैकीडर्म्स हो गए, यानी कि मोटी चमड़ी वाले जानवर, राइट। एसेंशियली द बॉडी हीट ऑफ एलिफेंट्स इज वेरी वेरी हाई. They prefer regions that are average in temperature, not very continental, right? Extreme temperatures, they cannot survive in extreme temperatures, one thing. पानी के पास रहना ज्यादा पसंद करते हैं. And the reason elephants have big ears, ये जो बड़े बड़े कान होते हैं elephants के, that they keep flapping, that is because of the blood vessels, the blood veins that are present in the air. They basically cool down the entire body heat of the elephant. So increasing temperatures is a direct threat to the elephant population, not just an Asian elephant but also African elephant for that matter. All right, so that is all for today's current affairs. Thank you so much for joining. Till then, see you, take care.